Sorry for what it is. Yes. Hi. Yes. One second. Hopefully, ma'am. All fingers crossed. This year is happening here for you. What do you say? Sorry, ma'am. This year is happening and you are the costliest actor in the Indian film industry. That I don't agree at all. Why? Because that is not true. But I hope y'all watch Pushpa 2 in the theatres on December 5th, and I hope you will like the film because the film is amazing, is what the inside talks are. What does the film festival mean to you? Film festival what it means to me is a celebration. It's where all of us celebrate our films we shoot for over 1, 2, 3, 4 years together, and finally we get to celebrate the films, and I'm really grateful for it. We are missing Allu Arjun here. Yes. Where is Pushparaj? Pushparaj sir is busy back in Hyderabad because there's a lot of work going on, like Sukumar sir, Allu Arjun sir, Kuba sir, all like DSP sir, everyone is like in the last leg, so I'm here to represent the film myself, and I hope I do a good job. Sorry, thank you. Can you expect for you also for Pushpa 2? Hopefully. I am so proud. I'm so proud to be a part of IFFI, and it's my first time here. And coming here as a jury member for the web series, it feels, I just feel so honored. And thank you, IFFI, for having me here and inviting me here and being such gracious hosts. Thank you. Ma'am, you are a jury for web series. So Yes. what has been your checklist while you were selecting all the movies and the projects? The checklist has been a show which doesn't feel like a show. It feels like I'm a part of it. And it feels like it has taken me on a journey, which doesn't just treat me as a viewer, but as a voyeur. And something that I identified with, it has the smell of nostalgia, and that is what we all selected. It's a beautiful concept which they came up with, and it's lovely. So we're trying to do dances from around the country. अभी 7-8 minute में सारे तो नहीं कर पाएंगे, but whatever we could, and try to bring how beautiful our culture is, and how colorful and how rich it is. So yeah. Shreya ma'am, you're known for your dances, and we heard that you secured a special song with Surya sir in Tamil movie. Is that true? I did a song in Surya sir's movie. It was lovely shooting for it. I think वो December में आ रहा है गाना. ऐसा मुझे last बताया था यार. That's true. Any upcoming works in Telugu, Tamil? I'm doing a new film in Telugu, but वो it's more of a pan-Indian film. It's more history with it's very interesting. Yeah, so उसकी shooting actually परसों से शुरू होगी. श्रेया, हिंदी फिल्म ज्यादा क्यों नहीं करती आप? क्यों नहीं? जब भी दिखते तो बहुत हमको मतलब mesmerize कर देती है. तो क्या कारण है आपका? How sweet, thank you. आप ये please producers directors को बोलिए. So you don't go and ask, or you wait till the producer director कभी comes to you. ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, कभी तालमेल नहीं बनता, कभी कुछ नहीं होता. So it's all like that. Sometimes the good work doesn't come to you. क्योंकि कई बार सही फिल्म में होना, it's all about good luck, हाँ. Everything comes together. कभी होता है, कभी नहीं हो पाता. So yeah, I mean हम तो pray करते हैं कि अच्छी फिल्म में काम मिले, हम लोगों से काम. Of course we go ask for it shamelessly, but कभी होता है, कभी नहीं होता. So I really don't know. जी, मुझे तो नहीं लगता मैं हैपनिंग हूँ. आपको लग रहा है तो उसकी बहुत खुशी है. थैंक यू. बट आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम. 12th फेल हो गई या साबरमती हो गई, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल फिल्म्स हैं, लोगों तक पहुंची हैं. बट आई थिंक इट्स जस्ट द बिगिनिंग. आई हैव जस्ट बिगन. अभी कंसिस्टेंसी जो है वो रहेगी, तब शायद थोड़ा मजा आएगा. सिलेक्शन चेंज होगा कि उसमें मैंने हमेशा ये कहा है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है, और मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबली ही काम करने की कोशिश करता हूँ. चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो सेक्टर 36 हो, या चाहे वो साबरमती रिपोर्ट हो. कोशिश रहती है कि जैसे मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल सिनेमा हो,
एंड मतलब कोशिश रहती है, दैट्स द आइडिया. But is there enough responsible cinema in the making? आई थिंक देयर इज. अगर एक 12th फेल है और अगर एक साबरमती रिपोर्ट है और लोगों ने उसे इतना सराहा है, जनता ने इतना सराहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो ये इस बात का अंदेशा है कि रिस्पॉन्सिबल सिनेमा लोग देखना चाहते हैं, एंटरटेन भी होना चाहते हैं. और सिनेमा, हिंदुस्तान का जो सिनेमा है वो सबसे बड़ा सिनेमा है पूरे विश्व में. हम लगभग 1800 से 2000 फिल्में साल में बनाते हैं, तो हर प्रकार की फिल्में बनती हैं और बननी भी चाहिए. रहा सवाल रिस्पॉन्सिबल सिनेमा का, तो बहुत लोग हैं जो बना रहे हैं, चाहे वो लापता लेडीज क्यों ना हो, चाहे वो 12th फेल क्यों ना हो, और भी लोग पहले भी बना चुके हैं. ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है. Your actually belongs to Vikrant Massey. Do you think, Thank you so much. Vikrant sir, do you think this is a new mantra for Bollywood, honest and responsible films more than masala films? नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे मैंने कहा कि देखिए, मसाला फिल्में भी चल रही हैं और चलनी भी चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की फिल्में बननी चाहिए. अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या करने की रुचि रखता हूं, तो वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पायरिंग सिनेमा हो. देखिए, कहीं ना कहीं आज भी जो सिनेमा का माध्यम है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माध्यम है. समाज के बहुत से लोग सिनेमा देख के प्रेरित होते हैं. अगर आप 12th फेल की बात करें, मैं इतने बच्चों से मिला हूं जिन्होंने मुझे कहा है कि वो फिल्म देख के उनको जिंदगी में एक नई दिशा मिली है. तो एंटरटेन भी कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही साथ में अगर हम समाज का आईना बन के वो कहानियां अगर हम कहने की कोशिश करें और लोग उसे देखें तो अच्छा लगता है. हर प्रकार की फिल्में बननी चाहिए. थैंक यू. ठीक है. We want to ask a very personal question. How come you managed to look all time pretty? My personal question. That is a secret. Share with us, no? It's all your love and affection. That's true. Yeah. What is that work? Today 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं आई हूँ एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड. इस मौके पर मुझे यहाँ पे निमंत्रण देना और यहाँ पे कुछ कहने के लिए आप सब ने मुझे मौका दिया था. एंड फिल्म फेस्टिवल इज लाइक ए बिग प्लेटफॉर्म नेशनली इंटरनेशनली. तो अपने कला को, अपने संस्कार को, संस्कृति को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. हजारों कहानियां आती हैं, उन भावनाओं को हम लोगों ने फिल्मों में बना के लोगों तक पहुंचाते हैं. तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म. और यहाँ पे खासतौर गोवा में कला और संस्कृति का और सौंदर्य का एक अनोखा एक मिलन है. तो मैं यहाँ गोवा आना और मुझे यहाँ पे लास्ट डे इस इंटरनेशनल फेस्टिवल का समापन पर बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगा. It feels really great, yaar. It's my first time at IFFI, and I'm really excited to be here. Any film festival is like real festival for all the actors and all the artists. So yes, I'm here to celebrate. Agni is on the card, so can you please tease us all about the project? So Agni, I guess I'm very proud about the film, and I'm really lucky that I am a part of this film, which is going to be India's, I guess, first ever firefighter film. सो अग्नि एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम पहली बार शायद फायर फाइटर्स की दुनिया को, उनके जीवन को थोड़ा नजदीक से देखेंगे. और पिछले कुछ सालों में जितने फायर इंसिडेंसेस हम सब ने देखे हैं न्यूज़पेपर्स में, आई गेस उस हिसाब से शायद बहुत कुछ जानने भी मिलेगा नया. You are very prominent face in OTT. How do you people recognize you with the character? I feel privileged, ma'am. I feel really lucky and feel honored actually, because मैं करेक्ट टाइम पे शायद करेक्ट अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाया. And I was very happy to be over here. एंड इसी से हमेशा जुड़ा रहा है, बहुत सालों से जुड़ा रहा है. एंड कभी जूरी के तौर पे, कभी चेयरमैन के तौर पे, कभी स्टीयरिंग कमेटी में. एंड आई थिंक इफ इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बी ओवर हियर. एंड लॉट्स ऑफ गुड मूवीज, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री वाज शोन दिस ईयर. आई एम वेरी हैप्पी. एंड फॉर अस टू चूज द फिल्म वाज वेब सीरीज वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ टॉप 10 एंड देन वी हैड टू फिल्टर टू 8 टू 7 टू 5 टू 4 टू अल्टीमेटली 1. बट अच्छा लगा. And it was great to be among other co-jury also. Rupali Ganguly ji, Krishna ji, everybody, Harish ji. So it was very nice, and I'm very happy to be in IFFI over here all the time, and great to meet film industry people across the globe. चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो हमारे यहाँ के हो, अलग अलग फिल्म मेकर्स हो, साउथ इंडस्ट्री के लोग हो. मिलना अच्छा लगता है, उनसे बैठ के इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है. कई चीजें हमको सीखने मिलती है, कई
फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट अच्छा होता, बजट कम होता, तो भी हम लोग को सीखने मिलता कि हाउ दे मेड इन सच अ मूवी। हर किसी को बड़ा बजट नहीं मिलता, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंटरनेशनल बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और ग्लोबली इसको जाना जाता। हम किधर भी जाते हैं, मैं कहते हैं कि यार इंडिया से हो, गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता, तो आई थिंक इट्स अ बिग प्रेस्टीज। आई हैड अ अपॉर्चुनिटी टू गो टू रिप्रेजेंट इंडिया इन कांस फॉर टू टाइम्स, तो बहुत अच्छा लगा। वहां पे भी जाके लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं हमारी पिक्चरों को लेकर, हमारे कॉस्ट्यूम्स को लेकर, हमारे गाने को लेकर, तो आई फील इट्स अ ग्रेट थिंग एंड इंडिया इज डेफिनेटली रीच द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। ओटीटी के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? ओटीटी की ऑब्जर्वेशन ये है कि ओटीटी इज डेफिनेटली ओवर हियर टू स्टे, एंड आई ऑलवेज सेड दैट कि फिल्म एंड ओटीटी विल को एग्जिस्ट टुगेदर। ओटीटी की ऑडियंस होगी, फिल्म्स की अलग अलग ऑडियंस होगी, तो वो दोनों देखेगी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा कंटेंट होगा, चाहे वो थिएटर में हो चाहे ओटीटी में, लोग देखेंगे उसको। सर फिल्मों में क्या हो रहा है? फिल्मों में फिल्म बना रहा हूँ, और क्या अभी मैंने आई एम राइटिंग अ फिल्म कॉल्ड वाइफ्स ऑफ बॉलीवुड। मैंने उस पर काम शुरू किया है, और वो स्क्रिप्टिंग काफी लेयर्ड है। वो सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ट्रायल एंड टर्बुलेशन है अबाउट द बॉलीवुड वाइफ्स, तो उसके ऊपर है बहुत हार्ड हिटिंग रियल का एक जो मेरा तड़का होता है, जैसे आप लोग को अच्छा लगता है हमेशा, वो है। तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, लेट्स सी जल्दी से जल्दी मैं स्क्रिप्ट खत्म करूं, एंड आई होप टू स्टार्ट द मूवी सीन। और दूसरी फिल्म भी है मेरे पास जिसका काम चालू है, तो लेट्स सी। ओटीटी पे ही मेरी बातचीत चालू है, प्रोजेक्ट किसी है, तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच।